ہمارے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہماری پارٹی اقتدار میں تھی جو 70 سال سے سابقہ گورنمنٹ نے نہیں کر سکی، جو 70 سال میں نہیں ہوئے وہ 3 سال کے اندر کام ہو گئے۔ آج لوگ انہیں کاموں کو دیکھ کر اس وقت پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور پارٹی کو مل جائے تاکہ آئندہ حکومت پی ڈی پی کی ہو اور آپ کی جو منگیں ہیں وہ پوری ہو سکے۔ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے جو سبز بال دکھائے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، وہ خالی دکھانے کے تھے اور کام اس پر کچھ نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں جن لوگوں نے یہاں پہلے بھی کہا ہے کہ سڑکیں ختم ہو گئی ہیں، خالی جو ہے سبز بال ہے، ہم کو دیکھیے ہمیں کہ بھئی آپ کو 5000 ملازم لگانے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، آپ کو کمیشن دیں گے، مگر لسٹ ہم دیں گے۔ اور کون دیتا ہے لسٹ؟ نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے، ان کے منسٹر۔ اور یہ تو پتہ ہے آپ کو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے نوجوان انتظار کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ نوکری ملنے والی ہے، وہ کہاں سے ملے گی؟ جبکہ یہ چور دروازے سے بھرتیاں کر رہے ہیں۔ ٹرانسفر کرنی ہو 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ تب جا کے ٹرانسفر ہوتی ہے افسروں کی۔ تو یعنی جس عادت کی عادت تھی اس سے یہ لوگ باز نہیں آئے۔ مگر میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، مفتی صاحب نے ہمیں ایک نقشہ دیا جموں کشمیر کو اس مصیبت سے نکالنے کا۔ آپ کو جوڑا مغل روڈ سے ٹنل آپ بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے پہلے بھی جب وزیر اعلیٰ تھی میں نے گڈکری صاحب سے بات کی تھی تاکہ آپ 2 گھنٹے کے اندر کشمیر پہنچ جاؤ۔ ہم نے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بنائی تھی، آج دیکھیے اس کا کیا حال ہے۔ کیا یہ عمر صاحب کا فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ دیکھیں اگر بابا غلام شاہ بادشاہ صاحب کے نام پہ یونیورسٹی بنی ہے وہاں رجسٹرار کیوں نہیں ہے؟ وہاں لیکچررز کو تنخواہ کیوں نہیں ملتی ہے وقت پہ؟ وہاں پرماننٹ پروفیسر کیوں نہیں ہے؟ یہ تو محبوبہ مفتی کا کام نہیں، یہ تو ان کا کام ہے، کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ مگر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، ہمارے غریب جیسے ابھی وحید صاحب نے بتایا، ہم نے ایک بل لایا تھا۔ یہ جو غریب ہے گھاس چرائے پہ، کئی ٹرائبل ہے، ہمارے گجر بھائی ہیں، کئی 5 مرلے 10 مرلے پہ کوئی کوٹھا کوئی گھر بناتے ہیں، ان کا بچاؤ کیجیے، ان کو وہاں سے کھدیڑیے مت، ان کے مکان مت توڑیے۔ مگر عمر صاحب نے کہا جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں یہ لینڈ گرابر ہیں، یعنی زمین پہ ناجائز قبضہ کرتے ہیں۔ مگر جب ہوٹل والوں کی بات آئی بل پاس کر دیا۔ ہم ہوٹل والوں کے خلاف نہیں ہیں، مگر غریب کے ساتھ امیر دونوں کو آگے چلانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ڈیلی ویجرز کے لیے بل لایا، ہزاروں ڈیلی ویجر پی ایچ ای، اریگیشن، RMB، ہیلتھ، رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ان کو ریگولر کرو، یہ غریب آدمی ہے، پر نہیں کیا۔ ہم نے ایک بل لایا کہ آپ نے 2019 میں جموں کشمیر لوگوں سے سب کچھ چھین لیا، مگر اس میں سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ پیر پنجاب اور چناب ویلی کے لوگ کٹے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنا ڈویژن دو، یہاں ڈویژن کمشنر کو بٹھاؤ تاکہ آپ کو جموں، آپ کو سری نگر نہ جانا پڑے اپنے کام کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا میڈر کو ہی ڈسٹرکٹ دو، وہ ایک الگ تھلگ علاقہ ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کی آسانیاں پیدا ہو، مگر نہیں کیا۔ مگر آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو مفتی صاحب کا نقشہ تھا، ہم نے راولہ کوٹ کھولا، ہم نے کہا ہمارے لوگ بزنس کریں گے، یہاں سے کوئی چیز جائے گی وہاں سے بندوق نہیں آئے گی، وہاں سے پیسہ آئے گا، وہ راولہ کوٹ راستہ بھی بنا۔ مگر میں آپ سب ورکروں کو بتانا چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب کے نقشے کے بغیر جموں کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ آپریشن سندور کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا، مگر کیا آپ کو پتا ہے آج بھی پچھلے 3 مہینے سے چوری چپکے پاکستان کے ساتھ بات چل رہی ہے؟
जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तानियों के साथ बैठ के बात करते हैं। काश ये बातचीत ऑपरेशन सिंदूर से पहले की होती तो हमारे सरदार भाई वो शहीद हो गया, वो जो एक जुड़वा भाई बहन थे जोया और जैद वो शहीद हो गए, वो अपने आंगन में माँ बाप के खेल रहे होते। कितने बर्बादी हुई। मगर मुफ्ती साहब कहते थे कि कुछ भी करे बीजेपी, आखिरकार इनको टेबल पे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं। आपको बड़े मायूस लग रहे हैं, आपके चेहरे पे मुझे कोई रौनक नजर नहीं आ रही है। आज कोई इलेक्शन का वक्त नहीं है, आज हम कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, अपने वर्कर के साथ बात करने के लिए आए हैं। पिछले 1-2 महीने से हमने ये सिलसिला शुरू किया, पहले कश्मीर में गए और अब यहाँ पूछ आए हैं। वजह ये है कि आम लोग डिप्रेशन में हैं, मायूस हैं, डूबे हुए हैं, दम घुटता है, खुदकुशी करता है, गलत काम करता है और उसका सारे घर पे, सारे माशरे पे बुरा असर पड़ता है और ये बीमारी आज पूरे जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। हम शुक्रगुजार हैं, एलजी साहब ने इसका नोटिस लिया, वो कुछ न कुछ कर रहे हैं इसके बारे में, मगर हमें भी कुछ करना है। सबसे पहले मायूसी कुफ्र है, कहते हैं मायूस होना कुफ्र है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, आपने देखा ईरान, एक छोटा सा मुल्क, सामने अमेरिका, कैसे लड़ा वो, क्यों लड़ा वो? क्योंकि जब आप जुर्रत रखेंगे, ताकत रखेंगे, हिम्मत रखेंगे तो किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। जो आज का वक्त है, महंगाई का, बेरोजगारी का, बेकारी का दबाव है ऊपर से, अगर कोई नौजवान कोई पोस्ट लिखता है सोशल मीडिया पे, शाम को पुलिस बुलाती है, नजर रखी हुई है। हमारी मस्जिदों में कौन मौलवी है, वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, उसका सारा हिसाब किताब रखा जाता है। मगर ये वक्त भी नहीं रहेगा। आपको याद होगा, मैं बार बार पीछे नहीं जाना चाहती, 2002 से पहले भी हालात बहुत खराब थे। जब हम लोगों को बोलते थे हम आपको इस बेगार से निकालेंगे, बेगार के लिए ले जाते थे लोगों को, याद है ना आपको? घर में क्या होता था, अगर कश्मीर में कुछ होता था वहां शोर मचता था, मगर जब पीर पंचाल, राजौरी, पुंछ में ज्यादती होती थी तो कोई पता नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पुरसान हाल नहीं था। मगर हमने आपसे वादा किया कि पीडीपी आएगी, हालात को दुरुस्त करेगी। इसी तरह मैं आज आप लोगों को वादा दिलाना चाहती हूँ। बेरोजगारी उस वक्त भी थी, मुफ्ती साहब आए, लाखों रहबर तालीम टीचर लगाए, है ना? आज वही रोजी रोटी कमा रहे हैं ना, वही नौजवान, वो गांव का, दूर गांव का, जिसकी कभी बारी नहीं आती थी, 12वीं जमात पास, 10वीं जमात पास रहबर तालीम टीचर। इसलिए मायूस मत हो जाइए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा पानी यहाँ तक पहुँच गया है, महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। बिजली फीस जो पहले 500 आती थी आज 3000 है ना? गैस अगर 400 रुपए में होता था आज 1000 रुपए का है, आपको पता नहीं। यहाँ पे आज इन्होंने ज्वाइन भी किया आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यहाँ पुंछ में वर्कर्स कन्वेंशन जो है उसका इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है उन्होंने शिरकत की। उनके साथ कश्मीर से और राजौरी से जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं पीडीपी की वो शामिल थे। तो यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में दरअसल ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया जाए,
हुकूमत बनी थी और 2 साल होने को हैं और देखा कि आज जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ चूंकि सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट है, तो इसके अंदर एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो है वो जरूर रहनी चाहिए जहाँ पे लोगों के इश्यूज की हमेशा बात हो। और पीडीपी ने हमेशा लोगों के दिल की धड़कन बन करके लोगों की आवाज को उठाया है। आज भी उसी तरह से बहुत सारे इश्यूज के ऊपर उन्होंने यहाँ आकर के बात की और मैं समझता हूँ कि एक नई रूह जो है वो पीडीपी के अंदर आना शुरू हो गई। मेरा नाम फरीद मीर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज तहसील मेंढर से हैं। आज हमारी पार्टी की कायद महबूबा मुफ्ती जी आई हुई थी पुंछ में। उन्होंने साफ कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो झूठे वादे थे वो बिल्कुल खोखले निकले, डेली बेस को पक्का नहीं किया गया। जो बेरोजगार बच्चे हैं वो नशे की तरफ भाग रहे हैं, उनका रोजगार जो था उनसे रोजगार छीना गया। जो बच्चे कॉलेजेस में, जो बच्चे इंजीनियर बनने के लायक थे, पढ़ के आए, वो बच्चे आज मजदूरी ढूंढ रहे हैं। तो महबूबा जी ने कह दिया ये साफ लफ्जों में कि अगर हमारी पार्टी पीडीपी की सरकार आएगी हम डेली वेज को पक्का करेंगे और जितने हमारे बेरोजगार बच्चे हैं 100% कोशिश की जाएगी उनको रोजगार देने की। इसके साथ साथ में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे थे, गैस सिलेंडर फ्री देंगे, हम लोगों को जमीनें देंगे, उसके बदले में उन्होंने ये दिया कि गैस सिलेंडर बंद हो गए। उसके बदले में उन्होंने ये दिया कि जिनके मकान आज से 40-50 साल पहले बने हुए हैं उनको गिराने का ऑर्डर दे दिया। हमें उन्होंने जो वादे किए थे उसके बदले में हमें ये मिल रहा है। तो पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, पीडीपी की कायद हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज साफ करके कह दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन वादों पर पक्का उतरेंगे और अपने लोगों को कॉपरेट करेंगे। खुदा हाफिज। कन्वेंशन हुआ है, इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि हमारी पार्टी आने वाली कल जो है गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी की होगी और हमारे लोग जो है इस पार्टी का जन्म मजबूत करेंगे। आज वर्कर कन्वेंशन थी और अपने जितने भी वर्कर्स हैं, जोन प्रेसिडेंट से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से, काउंसिल इंचार्ज, उनको कह दिया गया है कि हम 2 साल चुप रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया कि आप काम करें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमीनी सतह पे एक जीरो उनका जो है निकला है और कुछ ही निकला और कुछ काम नहीं करते, इसलिए अपने जितने वर्कर्स हाजरात हैं उनको खुद के कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहाँ लूप होल्स है उनको उजागर करें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस टोटली फेल चुकी है पीर पंजाल में। और पीर पंजाल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मैराथन रेस की है। उमर अब्दुल्ला साहब और उनके जो खास चेहरे थे उन्होंने मैराथन रेस किया और सेल्फियां बनाई है और कुछ काम नहीं किया और जिन्हें पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। जो सियासी हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर को एक खाई की तरफ धकेला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात आवाम की चुनी हुई सरकार जो है, जिसे आवाम ने बड़ा मैंडेट देकर चुना था जम्मू कश्मीर में, वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। और बेरोजगारी, नशा अरूज पर पहुंच चुका है। हमारे नौजवान बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। उसी पर बात करने के लिए जो है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा आज पुंछ तशरीफ लाई थी और पुंछ के लोगों ने न सिर्फ उनका वालहाना इस्तकबाल भी किया और उनकी बात भी सुनी। तो उम्मीद रखेंगे कि पुंछ के लोगों ने जो पिछली बार गलती की है वो आइंदा नहीं दोहराई जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।